So now we move on to the exercises of adverbs. Okay, so here we discussed about the adverbs, that the adverb is a word that describes about the verb and it adds meaning to the verb. एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है कि हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, सो हाउ डू वी डू दैट, वो हम कैसे करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, किस प्लेस पे करते हैं, कितनी बार करते हैं. Adverb is a word that describes about the verb. Now here in this chapter we have studied about the different kinds of adverbs. हमने इस चैप्टर में adverbs की जितने भी different kinds होते हैं उनके बारे में पढ़ा. Adverbs of manner means, adverbs of manner they describe that how a certain action is done. Adverb of manner हमने ये adverbs of manner जो होते हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी काम को कैसे किया गया. It answers the question how. In adverb of time we studied that it tells us the time of the action. Adverb of time जो होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी काम किस समय किया गया, किस टाइम पे किया गया. And it answers the question where, and it answers the question when, कब किया गया. Okay. Third is your adverb of place. So adverb of place they tells us where the action has taken place. Adverb of place हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम कहाँ पर किया गया, किस जगह पर किया गया. And it answers the question where. Okay, they answer the question where. ये हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम कहाँ पर किया गया. Then the fourth one is adverb of frequency. Adverb of frequency answers the question that how often something has been done, or as how often, how many times an action has been done. Adverb of frequency हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम कितनी बार किया गया, किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को कितनी बार किया गया है. So they reflect, they answers the question how often. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताते हैं कि किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को, किसी भी वर्ब को कितनी बार किया गया है. नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस. नाउ द एक्सरसाइज इज पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑल्सो नेम द वर्ब विथ विच ईच इज़ यूज्ड. तो हम इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ेंगे. एडवर्ब ऑफ मैनर इन ये जो सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंसेस आर देयर. इन 10 सेंटेंसेस में से हमें एडवर्ब ऑफ मैनर ढूंढना है और चूज़ करके सिर्फ एडवर्ब ही नहीं ढूंढना, एडवर्ब ऑफ मैनर ही नहीं ढूंढना, हमें ये भी देखना है कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, या फिर ये जो पर्टिकुलर एडवर्ब है वो किस वर्ब के साथ यूज़ किया गया है. तो इसका मतलब हमें इस सेंटेंस में वर्ब भी ढूंढना है कि जिस वर्ब के लिए एडवर्ब का यूज़ किया गया है, और एडवर्ब भी चूज़ करना है. बोथ वी हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द सेम सेंटेंस, वर्ब एंड एडवर्ब. Now the first sentence is the girl was walking quickly. Walking is the verb here and quickly is adverb of manner. Then Indian soldiers fought courageously. Fought is the verb here and courageously is adverb of manner. He ate heartily. Ate is the verb here, heartily is adverb of manner. She spoke quietly. How does she spoke? उसने कैसे बात की? बहुत धीरे से. So here spoke is the verb here and quietly is adverb. We spend our money foolishly. Okay. So spend is the खर्च करना, पैसे खर्च करना ये भी एक verb है. It is an action. So here spend is the verb and foolishly is adverb of manner. ये manner है. Then sixth one, the sick woman walked slowly. So walked is the verb. चलना तो एक verb है, action है. Slowly is adverb of manner. This student writes clearly. So writes is a verb, लिखना एक verb है. Clearly मतलब उसने कैसा लिखा, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा, clearly. So clearly is adverb of manner. Eighth one, the batsman hit the ball hard. So hit is the verb here and hard is adverb of manner. Ninth one, the wind is blowing gently. हवा चल रही है. So blowing is the verb here and gently means धीमी धीमी, मतलब adverb of, it is adverb of manner. How is the wind blowing? Gently. कैसी हवा चल रही है? A gentle wind is blowing. So gently is adverb of manner here. Then 10th one, the shopkeeper spoke politely. So spoke is the verb here and how does the shopkeeper speak? It is politely. उसने कैसे बात की? Politely उसने बात की. So spoke is the verb here and politely is adverb of manner. Now come on to the next exercise, that is adverb of time. Next exercise में हम adverbs of time के बारे में पढ़ेंगे and also you have to find the verb. इस exercise में भी आपको adverb of time भी ढूंढना है same sentence से और
verb भी. So verb and adverb of time, both you have to find it from the same sentence. Okay, now the first sentence is obey your parents and teachers instantly. So obey is verb, किसी की बात सुनना या किसी की बात मानना, that is also an action, that is also a verb. So obey is the verb here and instantly is adverb. Okay, time, instantly मतलब तुरंत, तो ये टाइम बताता है कि आपको किस टाइम पे किसकी बात सुननी है. So instantly मीन्स तुरंत आपको उनकी बात सुननी होगी. So here instantly is adverb of time. सेकेंड वन इज़ आई विल सी यू लेटर. सी इज़ वर्ब, देखना मतलब किसी को देखना या वॉच करना, दैट इज़ ऑल्सो एन वर्ब हियर. सो सी इज़ द वर्ब, लेटर मतलब बाद में. सो हियर इट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, कब देखेंगे, बाद में देख लेंगे. सो हियर लेटर इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. देन थर्ड वन, यू विल गेट एन अपॉइंटमेंट लेटर टुमारो. सो गेट इज़ द वर्ब, मिलना. ओके, मिलना या पाना, ये भी एक वर्ब है. ओके, एंड टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम, कब मिलेगा, कल मिलेगा. सो टुमारो रिफ्लेक्ट्स द टाइम, ये टाइम बता रहा है कि हमें वो चीज़ कब मिलेगी, कल मिलेगी. सो टुमारो हियर इज एडवर्ब ऑफ टाइम. देन फोर्थ वन इज दैट डे ऑल द गेस्ट अराइव्ड लेट. अराइव्ड यानी कि आना, पहुँचना, अराइव्ड. सो दैट इज ऑल्सो अ वर्ब, ऑल्सो एन एक्शन. सो अराइव्ड इज द वर्ब हियर, लेट, देर से. सो ये टाइम, इट रिफ्लेक्ट्स द टाइम, ये हमें टाइम बताता है कि गेस्ट जो है वो कब पहुँचे थे, लेट से पहुँचे थे. तो लेट जो है वो टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम. देन फिफ्थ वन, वी वेंट टू द हॉस्पिटल टुडे. सो वेंट इज़ द वर्ब हियर, वेंट मतलब जाना, तो वेंट जो है वो वर्ब हो गया. टुडे आज ही, तो एट टुडे मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम, कब गए थे, आज ही गए थे. तो ये टाइम बताता है कि हम कब गए थे हॉस्पिटल, आज गए थे. सो टुडे इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम हियर. Then sixth one is everyone must get up early in the morning. So get up is the verb here. उठना, उठना ये भी एक verb है, एक action है. So get up is the verb here. Early जो है ये time बताता है, कब उठना है, early, जल्दी. So it is adverb of time. Seventh one is my friend is going to Jaipur shortly. Going मतलब जाना, ये भी एक verb है. Shortly means थोड़े समय में, थोड़े ही टाइम में. ठीक है, तो ये टाइम बता रहा है कब जाएंगे, थोड़े समय में जाएंगे, थोड़े समय में निकलेंगे. सो शॉर्टली इज़ हेयर एडवर्ब ऑफ टाइम. आई मेट हिम येस्टरडे. मेट इज़ अ वर्ब, किसी से मिलना एक वर्ब है. येस्टरडे कल मिले थे, तो ये टाइम बता रहा है कि हम उससे कब मिले थे, कल मिले थे. सो येस्टरडे इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम हेयर. देन गो देयर इमीजिएटली. गो इज़ द वर्ब, कहीं जाने के लिए कहना, वो ये भी एक वर्ब है. इमीजिएटली मीन्स तुरंत. सो इट शोज़ द टाइम, ये टाइम बता रहा है कि आपको कब जाना है, तुरंत निकलना है, तुरंत जाना है. सो इमीजिएटली हियर इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. देन 10th क्वेश्चन, माई फ्रेंड कम्स हियर डेली. कम्स इज अ वर्ब, ओके, एंड डेली कब आता है, रोज़ आता है. सो इट एक्चुअली शोज द टाइम, वो कब आता है, रोज़ आता है. सो हियर डेली इज एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ नेक्स्ट इज योर पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इस सेंटेंस में आपको सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस चूज़ करने हैं, वर्ब्स नहीं ढूंढना है. हैव यू एवर सीन अ रॉकेट गो अप. ओके, सो हियर गो इज़ अ वर्ब बट इट इज़ नॉट आस्क्ड टू राइट, सो नो नीड टू राइट इट. इस सेंटेंस में गो जो है वर्ब है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है वर्ब लिखने के लिए, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो अप इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ पर, ऊपर, मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस. माई फ्रेंड्स हैव गॉन आउट. मेरे सभी दोस्त बाहर गए हैं, कहाँ गए हैं, बाहर गए हैं. सो out is adverb of place and gone is the verb. Stand there, वहीं खड़े रहो. So there is adverb of place and stand is verb. My uncle is going abroad next month. Going is a verb and abroad is adverb of place. कहाँ जा रहे हैं, abroad जा रहे हैं. So abroad is adverb of place. Bring your exercise book here. Bring is a verb. Bring जो है verb है, action है. Here जो है adverb of place है, यहाँ लाओ. तो यहाँ यानी हियर, इट मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस. द वर्कर्स हैव गॉन अपस्टेयर्स. ओके, गॉन इज द वर्ब हियर, गॉन जो है वो वर्ब है. ओके, द वर्कर्स हैव गॉन अपस्टेयर्स. ओके, सो गॉन इज द वर्ब हियर, गॉन जो है वर्ब है. अपस्टेयर्स इज अ प्लेस, कहाँ गए, ऊपर गए हैं. ठीक है, सो अपस्टेयर्स हियर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. 7th one, we have been looking for them everywhere. Okay, so looking is the verb here and everywhere is adverb of place. Everywhere means हर जगह. So ये place है, कहाँ पे देखा, हर जगह देखा. So everywhere is adverb of place. 8th one, our team is going outdoors to play football. So going is the verb, going जो है verb है,
और आउटडोर्स मीन्स बाहर कहीं जाना. ओके, सो हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस. आउटडोर्स मीन्स कहीं बाहर जाना. सो आउटडोर्स जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. ही लिव्ड समवेयर इन कोलकाता. सो लिव्ड इज द वर्ब हियर. लिव्ड जो है वर्ब है. समवेयर मीन्स कहीं, कहीं पे रहता था, कहीं पे. सो ये एक जगह है. समवेयर इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. देन लेट हिम गो आउट. गो इज द वर्ब हियर एंड आउट मीन्स बाहर. सो इट इज़ एन प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें चूज करनी है. वर्ब दे हैव नॉट आस्क्ड इट, सो नो नीड टू राइट. यहाँ पे वर्ब के बारे में पूछा नहीं गया है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सीमा practices the violin regularly. So what is the verb here? Practices. Practices जो है verb है. Regularly मीन्स कब प्रैक्टिस करती है? रेगुलरली प्रैक्टिस करती है. सो रेगुलरली जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. आई ब्रश माई टीथ एवरी डे. सो ब्रश इज द वर्ब हियर. ब्रश जो है वर्ब है. एवरी डे इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. कब वो अपने ब्रश करती है? एवरी डे, हर दिन. सो हियर एवरी डे इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन थर्ड वन इज आई हैव नॉट मेट हर फ्रेंड फ्रीक्वेंटली. मैंने बहुत दिनों से उसके फ्रेंड से नहीं मिली. सो हियर मेट इज द वर्ब हियर. मेट जो है वर्ब है. फ्रीक्वेंटली इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फोर्थ वन इज द स्पोर्ट्स डे इन आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली. ओके, नाउ ऑर्गेनाइज्ड इज द वर्ब हियर. ऑर्गेनाइज्ड जो है वर्ब है. एनुअली इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एनुअली मीन्स साल में एक बार. ओके, सो कितनी बार होता है? साल में एक ही बार होता है. सो एनुअली इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर. देन फिफ्थ क्वेश्चन, दे सेल्डम वॉच टीवी. ओके, सेल्डम मीन्स कभी कभार. ओके, कभी कभी. सो वॉच इज द वर्ब हियर. वॉच तो वर्ब है यहाँ पे और सेल्डम जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. देन सिक्स्थ वन, वी ओकेजनली मीट ओवर अ कप ऑफ टी आफ्टर वर्क. सो मीट इज द वर्ब हियर एंड occasionally is adverb of frequency. Then seventh one, he sometimes writes to me. So writes is the verb here. Sometimes means कभी कभार. So sometimes is adverb of frequency. We often go there. Go is the verb here and often is adverb of frequency. I have only met him twice. So met is the verb here and twice is adverb of frequency. Then tenth one, she always tries to do her best. Okay, so tries is a verb. Tries to do is a verb. Okay, tries और to दोनों ही verb है. And always is adverb of frequency. Okay, so adverb of frequency they answers the question how often. adverb of frequency हमें ये बताता है कि हम किसी भी एक्शन को कितनी बार करते हैं या कितनी बार किए हैं. So it answers the question how often an action has been done. Now next exercise is look at the pictures and draw a circle around the word that is most appropriate for the sentence. Okay, now इस sentence को ये pictures, यहाँ पे कुछ pictures दिए गए हैं और इन pictures को देखते हुए यहाँ पे sentence भी लिखे. sentences are also given and pictures are also given. So we have to look at the pictures, we have to go through the sentence and we have to use the suitable adverb in a particular sentence. तो हमें पिक्चर्स को देख करके, क्वेश्चन को देख करके किस क्वेश्चन में कौन सा एडवर्ब सबसे सूटेबल होगा वो हमें लिखना होगा. एंड यू हैव टू सर्कल द ऑप्शंस ऑल्सो. और जो ऑप्शंस होंगे उन्हें सर्कल भी करना होगा. सो द फर्स्ट वन, द टॉर्टोइज वॉक्ड स्लोली. स्लोली इज़ द करेक्ट एडवर्ब. द डॉग बार्क्ड लाउडली. लाउडली इज़ द करेक्ट एडवर्ब हियर. शी लाफ्ड हैप्पीली. हैप्पीली इज़ द करेक्ट एडवर्ब. दे टॉक्ड क्वाइटली. Quietly is the correct adverb to be used. They ran quickly. Quickly is the answer here. He shouted angrily. Angrily is the correct adverb to be used here. Okay. Now the next exercise is playtime with adverbs. Okay. Now here also what you have to do is look at the pictures and complete the following sentences with suitable adverbs. यहाँ पे एक पूरा picture दिया गया है. इसे देख करके ब्लैंक्स में सूटेबल एडवर्ब्स लिखने होंगे ऑन योर ओन. यानी हेल्प लिस्ट इज़ नॉट गिवन. यहाँ पे कोई हेल्प लिस्ट नहीं दी गई है. द सन शाइन्स ब्राइटली. शाइन्स इज़ द वर्ब. ब्राइटली इज़ एन एडवर्ब. बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई. फ्लाई इज़ द वर्ब एंड हाई इज़ एन एडवर्ब. ट्रीज स्वे स्लोली इन द ब्रीज. सो स्वे इज़ द वर्ब हियर. स्लोली इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर. द माउंटेन्स टावर हाई. So tower is the, no verb is here actually. High is an adverb.
A boat moves smoothly. So moves is the verb here and smoothly is an adverb. Children play happily near their fields. Okay, so play is the verb here and happily is an adverb. Women work hard in their fields. So work is the verb here and hard is an adverb. Okay, then flowers are growing fast in this climate. So growing is the verb here and fast is an adverb. ऑल दीज आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ये सभी एडवर्ब्स ऑफ मैनर है एक्सेप्ट हाई. दिस birds fly high in the sky, then the mountains tower high. These both are adverb of place. ये दोनों adverb of place हैं. Rest brightly, slowly, smoothly, happily, hard, fast. All these are adverbs of manner. High और हाँ एक्सेप्ट हाई को छोड़ करके बाकी के जितने भी एडवर्ब्स हैं ये सभी की सभी एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं. ओके, brightly is also an adverb of manner. High is adverb of place. Slowly is adverb of manner. High is also adverb of place. Smoothly is adverb of manner. Happily is also adverb of manner. Hard is an adverb of manner and fast is also an adverb of manner. All these are adverbs of manner except high. It is an adverb of place. So write all the answers of these exercises exercise in your English grammar book only. जितने भी answers होंगे इन्हें आपको book में ही लिखना है. Nothing to write in the copy related to this exercise. इस exercise से related book में जो भी exercise है वो copy में नहीं लिखने हैं. So you have to solve all these exercise in your book itself. Do it carefully and do the thorough revision of the chapter to understand it more clearly. Go through the chapter, read the chapter properly so that you can understand the types of adverbs more clearly.